Hello young physics learner, welcome back to my class. Today there is very interesting topic we are going to discuss, that is EMI, electromagnetic induction. I have taken one class regarding this chapter and this is chapter number 6 of NCERT book, and this is one of the most, I told it earlier, it is one of the most important topic related to vast discovery of current, and afterward it is most important topic for competitive examination as well as board examination. So EMI means electromagnetic induction. You can see my last lecture for getting the concept of basic concepts of Faraday law and his experiment. And afterward today I am going to discuss about Lenz law, which is the base of minus sign in Faraday law. So Lenz has described the minus sign in Faraday law, mathematical expression of Faraday law, that was E, which is known as electromotive force, EMF. Okay, so this E is equal to minus of delta phi over delta t, or it can be represented by d phi over dt, where phi is what? Flux. Delta means change in flux. So this is delta phi over delta t. Rate of change of flux is equal to electromotive force or EMF. This is also called motional EMF because it is linked with the motion of magnet. मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नेट मूव कर रहा होगा तो कॉइल में करंट जनरेट होती है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. वो करंट जनरेट हो रही है तो इसलिए वहाँ पर एक आप कह सकते हो एपरेंट एक सेल है जो करंट को जनरेट कर रहा है, और वो एपरेंट सेल या जो स्टोरेज डिवाइस है वो एपरेंट सेल का EMF कितना है? दिस इज E, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. ओके, that was the concept, and that was very beautiful concept, very important concept given by Faraday. ये milestone था बेटा. this is regarding with the electromagnetic theory. अगर ये टॉपिक डिस्कवर्ड नहीं हुआ होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी नहीं आ पाती. ठीक है, सो दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. और फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज़ द बेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स में जो फोटोन कॉन्सेप्ट आया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे पर बेस्ड हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पिछले टॉपिक अच्छे से पता होने चाहिए ताकि आप आगे के टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ. ये मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग है. ठीक है, और अगर आपको बेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर का, तो कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आप ना लगा सकते हो. मैं आपको खुद से ड्राइव करना चाहती हूँ कि आप खुद ड्राइव करो और न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करो. आपकी न्यूमेरिकल व्हीकल आप ड्राइव करोगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. ठीक है, मैं सिर्फ एक आपको पुश दे रही हूँ, कुछ न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाती हूँ, और उस न्यूमेरिकल के बेसिस पर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन होती है, यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम, यू कैन कमेंट ओवर माई under my video and I will give response accordingly. Okay, so but consistency and continuous practice is most required thing, and I'm sure you will do it. So here this one is E and this is given by minus of delta phi by delta t. So where this minus sign, Faraday ने इतना बता दिया था कि ये जो माइनस साइन आया है, that minus sign is the representation that the current, induced current, which was generated due to the change in flux in his experiment, that current opposes the causes by which it generate. उसी के बेसिस पर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि this one is a coil. If north pole is moving towards the coil, then current would be generated in such a manner that it will oppose the closeness of north polarity come closer to this coil. It will oppose the closeness of this north polarity towards it. Got it? तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर नॉर्थ पोलैरिटी की क्लोजनेस को अपोज करना है तो यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट होनी चाहिए, यानी कि करंट किस डायरेक्शन में होगी. ये रूल तो आपको लर्न रखना है कि कॉइल में या किसी भी लूप में करंट कैसे जनरेट होती है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन से इट एज अ लॉ, डायरेक्शन लॉ, this representation, if n north polarity is generated across the coil, then it is the anti-clockwise direction. If south polarity is generated across the coil, then it is clockwise direction. south का के S में, साउथ S से शुरू होगा, SOUTH, तो उस S में
अगर आप दोनों साइड में एरो बना दो, उस एस के दोनों साइड में एरो बनाओगे तो ये सर्कुलर लूप के सर्किल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर अप कर रहा है। क्लियर? सो दैट इज द केस हियर। इज इट क्लियर? नाउ ओके, सो दिस वन इज द साउथ पोलैरिटी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, एंड नॉर्थ पोलैरिटी दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ओके, सो ये जो केस आया, ये इसमें माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा था कि करंट जो जनरेट होती है वो क्लोजनेस का अपोज कर रही है, यानी मोशनल ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है। मोशनल ईएमएफ कहाँ से आ गया? क्योंकि आपका बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने जब पढ़ा था, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था कि जब भी करंट जनरेट हो रही है तो किसी ना किसी सोर्स से जनरेट हो रही है, और वो सोर्स क्या होता है? या तो बैटरी होगा या स्टोरेज डिवाइस होगी। तो वो यहाँ पर अगर करंट इंड्यूस करंट है तो उसके लिए एक एपरेंट, एक आप कह सकते हो कि विच इज़ इनविजिबल, एक बैटरी या सेल हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही है। क्लियर? सो दैट इज़ द केस हियर कि ये जो इंड्यूस करंट है दैट इज़ अपोजिंग द कॉज बिहाइंड इट्स ओरिजिनेशन। ठीक है, जिस कॉज से जनरेट हो रही है उसका अपोज कर रही है, यानी ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो नेचुरल फिनोमेना के ऑपोजिट है। नेचुरल फिनोमेना में क्या होता है कि अगर कोई भी ओरिजिनेशन हुआ है तो वो उस कॉज को अपोज नहीं करता जिसकी बेसिस पर वो ओरिजिनेशन हुआ है, बट यहाँ पर जिस कॉज के बेसिस पर करंट जनरेट हुई, यानी कि इस मैग्नेट के क्लोज आने के बेसिस पर ये जनरेट हुई है, तो इसके क्लोजनेस को अपोज कर रही है। अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो फ्लक्स क्या होंगे? कम होंगे, यानी कि फ्लक्स में चेंज होगा, तो फ्लक्स में चेंज से हमेशा ईएमएफ जनरेट होता है। देखो, एक चीज़ हमेशा क्लियर रखना कि जहाँ कहीं भी फ्लक्स चेंज हो रहे होंगे वहाँ पर करंट जनरेट होगी, वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो वो जो कंडीशन है वो तो हर केस में अप्लाई होनी ही होनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर दूर जाएगा तब भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेट पास आ रहा है तब भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो दोनों ही केस में यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। लेंज लॉ ये कहता है कि ये जो माइनस साइन आया था उन्होंने ये बताया, वो लॉ ये है, स्टेटमेंट है, इनका स्टेटमेंट लिख लो आप, दैट करंट, और यहाँ पर इंड्यूस्ड वर्ड यूज़ करना रिक्वायर्ड है क्योंकि करंट कन्वेंशनल करंट नहीं है, ये इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट ऑब्लिक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज opposes the cause behind its origination. Is it clear? तो हमेशा उसको अपोज करता है, और इसको इन्होंने प्रूव किया कि ऐसा हो रहा है, फैक्ट है, ऐसा हो रहा है। वो फैक्ट मैं अभी आपको बताती हूँ किस बेसिस पर हुआ। ओके, सो यहाँ पर अगर हम एक ये वाला केस ही एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्थ पोलैरिटी क्लोज जा रही है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्लोज आ रहा है लूप के, और इस लूप में क्लोज आने से क्या होगा? पहले जो फ्लक्स थे जब ये दूर था, देखो यहाँ पर था, तो फ्लक्स जो ओरिजिनेट हो रहे होंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रही होंगी वो 2 गई हैं, बाकी थर्ड वन बाहर निकल गई। अब जब मैग्नेट क्लोज आ गया तो क्या होगा? सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास आउट हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो गया फ्लक्स, तो फ्लक्स में चेंज हुआ। एंड वेन एवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स देयर मस्ट बी जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कोरस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड करंट। सो हियर अगर ये केस है यहाँ पर, तो हम इसको ऑपोजिट केस लेते हैं, इस केस का ऑपोजिट। तो ऑपोजिट केस ये होगा दैट नॉर्थ पोलैरिटी एंड साउथ पोलैरिटी, एंड देयर इज अ कॉइल एंड नॉर्थ पोलैरिटी इज कमिंग क्लोजर टू दिस कॉइल. So actually north polarity should be generated. That means the current induced current in this loop should be anti-clockwise होना चाहिए. हम इसका ऑपोजिट केस लेते हैं साउथ, कि यहाँ पर साउथ पोलैरिटी जनरेट हो गई, यानी कि करंट जो मूव करना शुरू हुई लूप में, लूप के 2 साइड होते हैं, हमेशा ध्यान रखना. ये लूप है, 5 रुपीज़ का कॉइन समझ लो. 5 रुपये कॉइन में वन साइड अगर नॉर्थ पोलैरिटी तो उसकी अदर साइड क्या हो जाएगी? साउथ पोलैरिटी. क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैग्नेट इस साइड से आ रहा था तो जो लूप का
ये सामने वाला फेस है, यहाँ पर साउथ पोलैरिटी अब जनरेट हो रही है, हमने एज्यूम किया है। वैसे क्या जनरेट होनी चाहिए? नॉर्थ पोलैरिटी। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हो रही होती तो इस साइड के फेस में साउथ पोलैरिटी होती, दिस वन। अगर यहाँ पर साउथ पोलैरिटी जनरेट हो रही है, दैट मीन्स ऑपोजिट फेस की साइड में क्या है? ये नॉर्थ पोलैरिटी है। तो एक लूप एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये प्रूफ हुआ था। यहाँ पर उस प्रूफ को भी हम यहाँ पर लगाएंगे आगे के क्वेश्चंस में, आने वाले हैं ये क्वेश्चंस। यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी अगर क्लोज आ रही है तो हमने नेचुरल केस का ऑपोजिट केस लिया, मतलब लेंच ने इसी बेसिस पे प्रूफ कराया था, ठीक है। दैट साउथ पोलैरिटी यहाँ जनरेट हो रही है। सो व्हाट विल हैपन, हमने यहाँ पर जब मैग्नेट को मूव कराया था तो इनिशियली हमने एक फोर्स लगा दिया था और उस फोर्स के बेसिस पर ये मैग्नेट आगे मूव कर गया था। क्लियर? अब क्या होगा कि यहाँ साउथ पोलैरिटी जनरेट होने से ये मैग्नेट पे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी के ई आई है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई एफ हो गई। एंड इट इज़ श्योर कि के ई एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस एफ मीन्स फाइनल, इट मस्ट बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्यों होगी? क्योंकि साउथ पोलैरिटी के डेवलप होने से यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेट अट्रैक्ट होना शुरू होगा, और जब अट्रैक्शन होता है तो मोशन की स्पीड बढ़ जाती है, होता है। जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, अगर स्पीड बढ़ गई तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? साउथ पोलैरिटी अगर जनरेट हो रही है, ये ऑपोजिट केस चल रहा है, ध्यान रखना इसे। साउथ पोलैरिटी अगर जनरेट हो गई है तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी थी ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन नहीं करेगा, जो हमने इनिशियली इसको प्रोवाइड कर दी थी। एक्सटर्नल एजेंट, वी आर द एक्सटर्नल एजेंट। हमने इस मैग्नेट को एक इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड कर दी थी जिस बेसिस पर ये आगे मूव कर गया था, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। लेकिन साउथ पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई तो दैट मीन्स व्हाट कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक का समझ में आ गया है? एनी डाउट? नो? ठीक है। तो अगर यहाँ पर चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में तो +1 का वो टॉपिक याद करो, +1 का वो टॉपिक जिसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, ठीक है। हमने तो कोई वर्क नहीं किया, तो ये लूप अपने आप से एक आप कह लो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये कैसे वर्क कर लेगा अपने आप से? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, इस लूप ने कैसे वर्क कर लिया, जबकि इसको एनर्जी इनिशियली जो मिली थी वो तो इसने यूज़ कर ली थी मोशन में। तो एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ तो फॉलो नहीं हुआ। विदाउट डूइंग एनी वर्क हाउ कैन काइनेटिक एनर्जी बी चेंज्ड? आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि यहाँ पर साउथ पोलैरिटी के डेवलप होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज़ हो जाना, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ हुई है तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये बढ़ी है एनर्जी इसकी, लेकिन कोई वर्क तो किया नहीं इसमें, एक्सटर्नल एजेंट ने पहले से छोड़ दिया था। इस लूप ने, जो कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जो इसके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है, उसके बेसिस पर यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज़ कैसे हो सकता है? यानी कि किसी भी बॉडी को अपने आप एनर्जी कैसे मिल सकती है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिसोबे कर रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो जब ये ना तो ओरिजिनेट हो सकती, तो यहाँ पे एनर्जी कैसे ओरिजिनेट हो गई कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई, क्योंकि हाँ एक्सटर्नल एजेंट ने कोई एनर्जी दी नहीं और लूप के पास कोई एनर्जी है नहीं। लूप इज़ जस्ट लाइक द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फॉर इट। लूप तो खुद ही ये मैग्नेट के मोशन पे डिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स व्हाट कि एनर्जी अपने आप से ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। अब इसी जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर, इसी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर काइनेटिक जो भी एनर्जी प्रोवाइड की गई थी उस एनर्जी के बेसिस पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए ये मैग्नेट यहाँ लूप की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, लूप की तरफ अप्रोच कर रहा है,
ठीक है। यहाँ लूप में नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट होगी तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब जब रिपल्शन स्टार्ट होगा तो इसकी एनर्जी कंज्यूम, जितनी इसको एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट ने दी थी यानी हमने दी थी मोशन में, उस सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी और ये मैग्नेट एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी प्रोवाइड हुई थी वो सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई। किस तरीके से? यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी के जनरेट होने से, यानी कि करंट के जनरेट होने से यहाँ पर वो एनर्जी कंज्यूम हो गई। कौन सी एनर्जी? जो एक्सटर्नल एजेंट ने दी थी। क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट होनी चाहिए। जो एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट दे रहा है उस एनर्जी को ये कंज्यूम कर ले रहा है। किस तरीके से? ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द टू पोलैरिटी, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोलैरिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन अगर इसमें नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हुई है यानी कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्शन होगा, तब जो एनर्जी गिवन एनर्जी थी दैट विल बी कंज्यूम्ड। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिसोबे नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर एनर्जी जनरेट हो रही है, यहाँ पे कंज्यूम हो रही थी, यहाँ पर एनर्जी जनरेट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। एनर्जी जनरेट हो ही नहीं सकती जब तक कि एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी नहीं देगा, बिकॉज इट इज़ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये एनर्जी का सोर्स है ही नहीं, ये तो एनर्जी लेकर के करंट खुद जनरेट कर रहा है। देयर इज़ एन इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप, तो दिस इज़ नॉट द सोर्स। एनर्जी का सोर्स कौन है? एक्सटर्नल एजेंट, नॉट दिस लूप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी ले करके ये अपनी उस एनर्जी को करंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द वन बेस बिहाइंड द लेंज लॉ। ये माइनस साइन का बेस है कि यहाँ पर ऑपोजिट पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। ऑपोजिट पोलैरिटी का मीनिंग ये है कि यहाँ पर पोलैरिटी इस तरीके से जनरेट होती है कि मोशन को अपोज कर रही है। क्लियर? तो पोलैरिटी अगर नॉर्थ क्लोज आ रहा है तो पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी और क्लोजनेस को अपोज करेगी। अब इसका रिवर्स केस लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय टेकिंग reverse case of actual phenomena. ओके, तो इस बेसिस पर लेंज लॉ प्रूफ हो जाता है, यानी माइनस साइन की ऑथेंटिकेशन प्रूफ हो जाती है कि माइनस साइन इज रिक्वायर्ड हियर। क्लियर? यहाँ पर एस और एन है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट केस की नॉर्थ पोलैरिटी दूर जा रही है, तब क्या हो रहा होगा। ठीक है, नॉर्थ पोलैरिटी दूर जा रही होती तो कैसी पोलैरिटी जनरेट होती है? साउथ, यानी नॉर्थ के दूर जाने को अपोज करेगी, जो यहाँ पर लॉ कहता है। अब नॉर्थ के दूर जाने को अपोज करने के लिए साउथ पोलैरिटी जनरेट होनी चाहिए, यानी कि अट्रैक्शन होना चाहिए। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दूर कैसे ले जा रहे होंगे? जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ पर जब वर्क इस बेसिस पर हो रहा है कि ये मोशन इसका लेफ़्ट साइड में जा रहा है, तो अगर इसमें साउथ पोलैरिटी जनरेट होगी तो साउथ एंड नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, यानी अब वर्क किस साइड में हो जाएगा? राइट साइड में। एंड द नेट वर्क विल बी रिजल्ट एज द टू काइंड ऑफ वर्क विथ साइन। तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए बिकॉज द वर्क इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड देन द नेट वर्क बिकम ज़ीरो। यानी जो ओरिजिनेट, जो मोशन के बेसिस पर यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट ओरिजिनेट हुई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो वर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो रिपल्शन के बेसिस पर यहाँ पर नेटवर्क ज़ीरो हो जाएगा, यानी जितना भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट कर रहा था मैग्नेट पर, वो सारा का सारा वर्क यहाँ पर कॉइल में फिर से कंज्यूम हो गया और वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और वो कौन सी एनर्जी थी? दैट इज़ अ करेंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगी। तभी तो यहाँ पे नेटवर्क ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? नेटवर्क ज़ीरो होने की कंडीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट शुड बी इक्वल टू वर्क। नेटवर्क के ज़ीरो होने का मीनिंग है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल, यानी ओवरऑल ये मैग्नेट फिर से स्टॉप हो जाएगा, मूव नहीं करेगा ड्यू टू द अट्रैक्शन। ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इक्वल हो जा रही है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन, ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैं, वो इस लेंज लॉ को, इस माइनस साइन की रिप्रेजेंटेशन को प्रूव करते हैं दैट द करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बाय विच इट जनरेट। क्लियर? अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा? जो लूप है वो किसी न किसी कंडक्टिंग वायर से मिलकर के बना है, ठीक है। तो कंडक्टिंग वायर अगर लेते हैं तो हर वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। नो वायर इज हैविंग ज़ीरो रेजिस्टेंस। ज़ीरो रेजिस्टेंस अगर हो जाएगा तो वो तो सुपर कंडक्टर हो गया। अगर आप सिल्वर भी लेते हो तो सिल्वर का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पर फ्लक्स और रेजिस्टेंस में रिलेशन प्रूव करता है। सो वी विल डू इट। रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका? इंड्यूस्ड करंट जिस कॉइल में जनरेट, किसी ना किसी कॉइल में जनरेट होगी, जिस कॉइल में जनरेट हो रही है उस कॉइल के वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन निकाल लेते हैं। आपको पता है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पता है ना, दिस इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ होता क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज़ इक्वल टू corresponding to the बैटरी सोर्स। बैटरी या सेल सोर्स भी आप कह सकते हो, या करंट सोर्स, इसे आप सिंपली करंट सोर्स कह लो। जिस बेसिस पे करंट जनरेट होती है उसको हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। तो ये एक काइंड का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ दिस E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। This is E. E is a kind of what? E is a kind of potential difference. So we can write E, ये जो लूप में करंट जनरेट होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इस करंट के लिए यहाँ पर एक एपरेंट इमेजिनरी यहाँ पर सेल लगा हुआ है, जो सेल यहाँ पर करंट को ओरिजिनेट कर रहा है। ये एपरेंट है, इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है। यहाँ पर करंट जनरेट हो जाती है तो करंट का सोर्स होता है सेल, तो यहाँ पर हम एपरेंट सेल एज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिस ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट इट एज इंड्यूस्ड करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो इज दिस ईएमएफ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज व्हाई इट इज I इंटू R होगा, माइनस ऑफ D बाई डी टी ऑफ फाई। क्लियर? क्लियर है ये? अब देखो I को हम क्या लिखते हैं? एज I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी होता है। यहाँ पर इस I को हमने डी क्यू बाई डी टी में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज R इज रेजिस्टेंस एंड इट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, सो वी कैन राइट दिस R इन द डिफरेंशिएशन साइन, सो वी कैन राइट इट हियर। अब यहाँ पर d बाई डी टी इधर भी, d बाई डी टी इधर भी है। वी कैन कंपेयर द डिफ्रेंशिएटिंग पार्ट। ओके, तो कौन से पार्ट आ जाएंगे? Q इंटू आर इज इक्वल टू फाई। मीन्स क्या हुआ कि फ्लक्स जो है वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, चार्ज पर भी डिपेंड करता है। मीन्स आप इस तरीके से ले लो कि चार्ज यानी कि करंट वैसे ही जनरेट होगी जिस बेसिस पर फ्लक्स चेंज हो रहे होंगे। ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो ज़्यादा चार्ज डेवलप होंगे, कम फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो कम चार्ज डेवलप होंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज़ दैट कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, यानी अगर आप ऐसे लो कि एक आपने ले लिया मटेरियल लूप का सिल्वर, दूसरा ले लिया एल्यूमिनियम और तीसरा ले लिया कॉपर, ठीक है। तो जो सिल्वर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर, आपको पता ही है। कॉपर को हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, तो कॉपर इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर। एल्यूमिनियम रेयरली यूज़ होता है बट इट इज़ द थर्ड वन,
क्लियर। फ्लक्स में चेंज हो रहा है मैग्नेट के मोशन के बेसिस पे। मैग्नेट पास जा रहा है कॉइल के तो क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। मैग्नेट दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम होता जा रहा है। अब अगर हमने एल्यूमिनियम वायर लिया दिस वन, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज कम डेवलप होंगे। क्यों? क्योंकि फ्लक्स तो मोशन पे डिपेंड करता है, यानी कि इस लूप के लिए तो फ्लक्स तो कांस्टेंट पार्ट हो गया। वो डिपेंड कर रहा है कि ये मैग्नेट का मोशन कैसा है, मैग्नेट पास जा रहा है कि दूर जा रहा है। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर मटेरियल कैसा है, यानी ये वायर जो लूप लिया गया उसका वायर कैसा है, किस मटेरियल का है, उस वो मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज कम हो जाएंगे, यानी इंड्यूस्ड करंट कम जनरेट होगी। अगर ऐसा मटेरियल लिया है जिसका रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली जो चार्ज होंगे वो ज़्यादा जनरेट होंगे। तो दैट मीन्स व्हाट, कि हम जितना अच्छा गुड कंडक्टर लेंगे, सिल्वर के लिए इंड्यूस करंट ज़्यादा जनरेट होगी एज़ कम्पेयर टू कॉपर, एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो अगर हमें इंड्यूस करंट ज़्यादा चाहिए तो हमें लूप कैसा लेना चाहिए, सिल्वर का। कंपेरेटिवली कम चाहिए तो कॉपर का लेना चाहिए। और अगर हमें बहुत ऐसी नीड नहीं है तो हमें एल्यूमिनियम का भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम केसेस। वो केसेस मैं लूँगी जिसमें आप ये बता पाओगे कि अब डायरेक्शन क्या आने वाला है करंट का। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी है, तो उसको समझने के लिए अभी आपको क्या करना होगा कि एक नोट कॉपी लो, एक पेन लो और फटाफट जो फिगर्स मैं बना रही हूँ उन फिगर्स को ड्रॉ करते जाओ और फिर मैं आपसे क्वेरी करूँगी। हाउ टू गेट डायरेक्शन of induced current okay, how to get direction of induced current। और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बहुत बनते हैं, बहुत सारे केसेस पूछे जाते हैं उसके, और प्लस ये आपके आगे की कंपटीशन नीट के लिए, आईआईटी की प्रीलिम्स के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रीलिम्स के हम मेंस में भी कई बार इसके कंबाइंड क्वेश्चंस बनते हैं, एंड यू विल फाइंड इट ईजियर व्हेन यू विल गो थ्रू विद दीज प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस इज अ क्रॉस फील्ड। इसको बना लो जल्दी से साथ ही साथ। ठीक है, ये क्रॉस फील्ड है। क्रॉस फील्ड का मीनिंग क्या है? अच्छा, क्रॉस फील्ड में देखो बीच में डिस्टेंस भी बराबर है, ये सारी डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो कि बोर्ड के अंदर है। क्रॉस का मतलब बोर्ड के अंदर, जिस प्लेन पे आप क्रॉस बना रहे हो उस प्लेन के अंदर। कॉपी में बनाओगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी अगर क्रॉस बनाइए, बोर्ड पे बनाइए तो हॉरिजॉन्टली इनवर्ड। ठीक है, सो दैट इज़ द केस ऑफ द फील्ड हियर। ये क्रॉस फील्ड बनी है। अब मैं यहाँ पर एक शेप लेती हूँ। दिस वन इज़ अ शेप। ये किसी भी स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, इसकी है वेलोसिटी 0। ओके, अच्छा एक शेप मैं यहाँ लेती हूँ और ये यूनिफॉर्म स्पीड से अंदर आ रहा है। एंट्रिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसको एज सच ऐसे ही लिखना, ये यूनिफॉर्म स्पीड से अंदर आ रहा है। ठीक है, फील्ड के अंदर आ रहा है और इसकी स्पीड 0 है। एक केस ये ले रही हूँ जिसमें एक ये क्लोज, पहले तो इस चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, क्लोज लूप होना चाहिए। और ये आपका जो ब्लॉक है, दिस इज़ 1 ब्लॉक, दिस वन इज़ 2nd ब्लॉक, दिस वन इज़ 3rd ब्लॉक। 3rd ब्लॉक भी यूनिफॉर्म स्पीड से इधर मूव कर रहा है, लेकिन मैंने आपको देखो एरो केवल फील्ड के अंदर दिखाया, यानी फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसकी भी स्पीड यूनिफॉर्म है, v स्पीड है इसकी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ये 3 केसेस मैंने लिए हैं, बहुत सिमिलर टाइप के लग रहे हैं। तो अब आपको इसमें बताना है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन हियर, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हियर। तो पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट ब्लॉक। अगर इसकी स्पीड 0 है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ पे डिपेंड करती है।
इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो माइंड में ये फिक्स कर लो कि इंड्यूस्ड करंट तब जनरेट होगी, कब जनरेट होगी? फॉर चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो कोई इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होनी है। ये बात अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है। अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होनी है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं जनरेट होगा। फ्लक्स में चेंज नहीं होने का मतलब है डेल्टा फाई ज़ीरो। इफ़ डेल्टा फाई इज़ ज़ीरो, ई इज़ श्योरली ज़ीरो, ठीक है। सो फर्स्ट केस में स्पीड ज़ीरो है। अगर स्पीड ज़ीरो है तो पहले जितने फ्लक्स थे, यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले इस एरिया के अंदर थी, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, यानी बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा इस केस में कितना हो जाएगा? ज़ीरो। आपको ये देख लो, ये एरिया है, एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? अंदर की साइड, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की साइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर हैं, एरिया वेक्टर अंदर की साइड है, तो फ्लक्स की वैल्यू बी और ए पर डिपेंड कर रही है। एरिया सेम है, ये मूव ही नहीं कर रहा है, तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं। या तो एरिया में चेंज हो या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो, तभी फ्लक्स में चेंज होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। फ्लक्स में चेंज कब होगा? ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, आइदर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। थीटा ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है, अगर थीटा वेरी कर रहा होता तभी फ्लक्स में चेंज हो जाता, ठीक है। यानी सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, समझना उससे अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर जा रही है, अगर ये कॉइल, ठीक है, ये या तो ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, ऊपर जाए नीचे जाए, या ये रोटेट भी कर रही होगी तो इसमें करंट जनरेट हो जाएगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। रोटेशन से क्या होगा? एंगल चेंज हो रहा होगा। जब ये कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स हो गई हैं अंदर ऐसे हैं, अगर ये रोटेट कर गई तो क्या होगा कि फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पहले थीटा कितना है? ज़ीरो, लेकिन हल्का सा भी रोटेट कर गई तो नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन जाएगा और फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। सो फ्लक्स में चेंज तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है एरिया वेक्टर, एंड थर्ड वन इज़ व्हाट? एंगल। तो रोटेशन से भी, किसी भी कॉइल के रोटेशन से भी फ्लक्स में चेंज होता है, यानी करंट जनरेट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट लूप है, फर्स्ट लूप ज़ीरो स्पीड पर है, इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। जब मूव नहीं कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एज सच बनी रहेगी इस एरिया के कोरस्पॉन्डेंस में, और एरिया भी कोई चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स एरिया इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, दैट मीन्स फ्लक्स इज कांस्टेंट। इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट then delta phi is 0. If delta phi is 0, then EMF is 0. If EMF is 0, induced current is 0. Clear? EMF is a kind of potential difference and EMF is equal to IR. So EMF और induced current का ये relation है जो आप ओम्स लॉ से पढ़ते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में दिया हुआ है, दैट इंड्यूस्ड करंट के लिए भी यही ओम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो दैट इज़ वाई यू कैन से इट दैट there is no change in flux, so no EMF means no current. So in the first case current I is equal to 0. Is it clear? I hope this is clear. अब ये देखो यहाँ पर ये जो लूप है, ये इस जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बनाया मैंने, यहाँ ये लिमिट है इसकी, दिस वन, ये इस लिमिट से थोड़ा सा बाहर था, इसका हाफ एरिया बाहर था. जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से अंदर मूव करेगा तो इसका एरिया, पहले कुछ एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही थी, बाकी इस पोर्शन वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो रही थी. समझ रहे हो? तो जब ये एंटर करेगा तो इसके पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अब इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का होगा जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसके पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैग्नेटिक फील्ड कम थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू द एरिया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई हैं, यानी फ्लक्स इंक्रीज़ हो गया है. तो पहले अगर φ1 था और बाद में φ2 हो गया, अंदर एंटर करने के बाद φ2 हो गया, तो दैट मीन्स व्हाट कि φ2 इज़ ग्रेटर देन φ1. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, तो जब ये इंक्रीज़ हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स में चेंज आएगा. इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए चेंज हो रहा है. अगर चेंज हो रहा है फ्लक्स में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, डेवलप होगा. इफ़ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा? करंट भी डेवलप हो जाएगी. तो यहाँ पर तो करंट जनरेट होगी. ठीक है, ये श्योर है.
I इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। अब ये पता करना है कि I का डायरेक्शन क्या होगा। तो I का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल होता है। राइट हैंड रूल में थंब इंडिकेट करता है मोशन को, ये जो मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट करती है इंड्यूस करंट को, एंड दिस द फर्स्ट फिंगर इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो वी विल टेक द केस हियर एंड वी विल राइट डाउन द पॉइंट हियर ABCD। तो जो आर्म हमें सामने दिख रही है एंटर कर रही है उस आर्म को ले लेते हैं। राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्लियर। सो दिस वन इज फ्लेमिंग राइट हैंड and this is the position of 3 fingers here, okay। if you are taking these 3 fingers, first finger magnetic field lines अंदर ले जाओ, ठीक है। second finger, this thumb indicates the motion of conductor। तो जो CB कंडक्टर है वो किस साइड में मूव कर रहा है, राइट साइड में। then the middle finger is going up, that means C to B, क्लियर है। देखो थंब का डायरेक्शन along with the velocity, और यहाँ पर ये मिडिल फिंगर करंट को शो करती है, इंड्यूस करंट को। सो दिस वन इज मिडिल फिंगर, सो करंट इज फ्रॉम C टू B। सो B से कहाँ जाएगी आगे, एक क्लोज लूप है, B टू A टू D एंड दिस वन। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ADCB, क्लियर। तो आपने क्या स्टेप्स अप्लाई किए, सबसे पहला स्टेप ये था कि आपने ये फाइंड आउट किया कि करंट जनरेट होगी भी कि नहीं होगी, वो किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे लॉ। पहले आप चेंज ऑफ फ्लक्स निकालोगे, ठीक है। अगर करंट जनरेट हो रही है तो उसका डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड केस। यहाँ पर थर्ड केस में क्या हो रहा है कि एरिया है और ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और ये लूप ने मूव कहाँ तक किया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तक। दिस वन इज द लिमिट, यू कैन सी दिस, इट इज द लिमिट। तो इसने मूव कहाँ तक किया है, केवल मैग्नेटिक फील्ड की लिमिट तक। तो अगर ये आगे बढ़ा भी होगा तो यहाँ तक आया होगा, ठीक है, लिमिट के अंदर ही रहेगा। तो पहले भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया में इतनी थी, अब जब आगे इंक्रीज कर गया तब भी उतनी ही है, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एरिया एज सच रहेगा लूप का, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि पूरा फील्ड के अंदर है तो फील्ड लाइंस भी उतनी ही हैं जितनी पहले थी। सपोज पहले इस एरिया के कोरस्पॉन्डेंस में 10 फील्ड लाइंस थी, तो आगे बढ़ने पर भी 10 फील्ड लाइंस है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, एक इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें अगर एरो रखे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पर अगर एरो रखे हुए हैं तो 10 अगर पहले थे तो आगे मूव करने पर भी 10 ही होंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम है, मूव करने के बाद भी जब पहले पोजीशन पे जितनी फील्ड लाइंस थी उतनी ही बाद में भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो जाएगी। एरिया जितना पहले था उतना ही एरिया अभी भी है, तो ऑब्वियसली एरिया भी सेम है। सो इफ area and magnetic field lines both are same, then there is no change in flux, and if there is no change in flux, there is no induced EMF. For zero induced EMF, there is zero induced current. तो that means कि यहाँ पर ये जो लूप था नंबर 3 है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, still there is no induced current because it is inside the magnetic field. Clear? So you can see the change in the 3 case. ओके अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं, इंड्यूस्ड करंट के वैल्यू को निकालना एंड एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शंस. सो यू कैन फाइंड इट इन दिस मेथड. ऑलवेज अडॉप्ट द सीक्वेंशियल मेथड टू फाइंड आउट, टू सॉर्ट आउट द सॉल्यूशन ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. क्लियर? अब मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपको देती हूँ. उसमें आपको डायरेक्शंस निकालने हैं. This one is uniform magnetic field. Okay. One loop, ये आपका NCERT में दिया हुआ है, आप देख सकते हो. One loop is this one and this loop is entering into the field. Second is D-shaped. Here this one is A, B, C, D. This one is going out of the field, and the third one here
This is the third case, it is going out of the field. A, B, C, D. So you have to find out the direction of induced current. Clear? You have to find out the direction of induced current in 3 cases. So this is first case, this one is second case, this one is third case, and all are moving with some velocity. Clear? तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पर देखो बाहर से अंदर एंटर कर रहा है, तो पहले फील्ड लाइंस कम थी और फील्ड लाइंस बढ़ गई हैं, ऑब्वियसली फ्लक्स में चेंज हो रहा है. वो फार्मूला आपने माइंड में रखना है, फाई इज इक्वल टू बी ए. सेकेंड केस दिस वन, ये इरेगुलर शेप है, ये फील्ड लाइन से बाहर आ रहा है, तो पहले फील्ड लाइंस ग्रेटर थी, अब फील्ड लाइंस कम होती जा रही हैं, तो फ्लक्स में चेंज होगा. एरिया सेम है. यहाँ पर भी ये जो शेप है, ये फील्ड लाइन में था, पहले ग्रेटर थी, अब फील्ड लाइन से जैसे ही बाहर निकलना शुरू होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, फ्लक्स में चेंज होगा. तो सारी केसेस में फ्लक्स में चेंज हो रहा है. जब फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो इंड्यूस्ड करंट होती है. दैट मीन्स ये तीनों केसेस में इंड्यूस्ड करंट है. ठीक है, तीनों में स्पीड है, तीनों में फ्लक्स में चेंज हो रहा है. बट अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वी विल अप्लाई हियर. अब आप देखो यहाँ से जो सी बॉडी इधर आ रही, तो एक पॉइंट से कभी भी आप रूल नहीं लगा सकते हो, आपको एक लाइन में रूल लगाना होगा. यानी जो मोशन हो रहा है कंडक्टर का, वो आप पूरा कम से कम 2 पॉइंट लो. यहाँ मैं अभी आपको बताऊँगी कि कैसे वो रॉन्ग प्रूफ होता है, इसलिए आपको रिक्वायर्ड है कि कम से कम 2 पॉइंट लो जो भी शेप आपको दिया हुआ हो. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो आप सी पॉइंट को देखोगे तो सी पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये सी पॉइंट इधर मूव कर रहा है, तो सी पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे कि करंट किधर जा रही है. तो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए. अब 2 पॉइंट में आप BC आर्म भी नहीं ले सकते हो. क्यों? क्योंकि BC आर्म तो अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ द ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो BC आर्म मोशन की ही साइड में उसकी अलाइनमेंट है, इसलिए BC आर्म को नहीं लोगे. आप AB आर्म को लो, तो देखो मोशन और ये जो AB आर्म है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही है. ऐसी आर्म को लेना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसमें आप डायरेक्शन ईजिली फाइंड आउट कर लेते हो. तो यहाँ पे रूल जब अप्लाई होगा, आपने राइट हैंड लिया, राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनवर्ड एंड थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो आप BC आर्म में, BC आर्म इस डायरेक्शन में मूव करिए, तो आपने इस डायरेक्शन लगाया. सो द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, मिडिल फिंगर इज़ फ्रॉम A टू B आ रही है. आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट इसीलिए चाहिए थे क्योंकि आप बता सको कि किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जा रही है, तो A टू B जा रही है. क्लियर? सो दिस वन इज़ द डायरेक्शन ABCA. डायरेक्शन क्लोज लूप में आपको पूरा बताना पड़ता है. सो करेंट डायरेक्शन इज़ ABCA. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर. इट इज़ इरेगुलर शेप बट डजेंट मैटर. आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए जो कि मोशन के परपेंडिकुलर आ रहे हो. तो आप ये AB पॉइंट ले लो. ठीक है, 2 पॉइंट. आपने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रख दी, मोशन इधर हो रहा है. अब आप AB पॉइंट को देखो, तो जो करंट है वो A टू B मूव कर रही है. इरेगुलर शेप होने पर भी आप देखो डायरेक्शन किधर आ रहा है, फ्रॉम A टू B. सो दिस वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट. हियर यू कैन राइट द डायरेक्शन ABCDA. किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डायरेक्शन पता चल जाता है तो ऑब्वियसली करंट एक कंसिस्टेंट पाथ में जाती है. तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा ABCDA. क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड फिगर. You will take BC arm obviously, as I told you. Magnetic field is inward, the thumb indicating the direction of motion of conductor. So the finger, middle finger is from C to B. Here, so current is C to B. एक आर्म में निकालिए, बाकी आर्म में अपने आप आ जाएगा. डायरेक्शन करंट का एक ही लूप में चेंज नहीं होगा. So C to B, B to A D, this one. So direction of current is ADCBA. क्लियर? ऐसे आप सॉल्व करते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को. एंड आई होप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल नाउ कैन सॉल्व ईजिली. ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बुक उठाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, लेकिन उसके लिए बुक आपको उठानी ही पड़ेगी. ओके, और आप उठाओगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ये भी है पॉइंट. सो यू कैन ईजिली गेट इट. एक आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसके बाद मैं आपको बाकी टॉपिक कल कराऊंगी. दिस वन इज़ अ लूप एंड देयर इज़ अ कैपेसिटर इन द लूप.
ओके, दिस इज़ ए पॉइंट, बी पॉइंट। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, और बहुत सारी बुक्स में, रेफरेंस बुक में इसमें दिया भी हुआ है कि आप कैसे निकाल सकते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देर इज़ नथिंग टू वरी हियर। ये मैग्नेट इस साइड में आ रहा है, ये मैग्नेट इस साइड में आ रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो कैपेसिटर है, ए बी कैपेसिटर, विच पोलैरिटी बिकम पॉजिटिव एंड विच प्लेट बिकम पॉजिटिव पोल एंड विच प्लेट बिकम नेगेटिव पोल, यानी ए पॉजिटिव होगी कि बी पॉजिटिव होगी। यू हैव टू टेल द आंसर दिस वन। नाउ यू कैन सी द नॉर्थ पोलैरिटी इज कमिंग क्लोजर टू दिस लूप। अब यहाँ पर अगर ऐसा केस दिया हुआ होता है तो आपको वो जो एसन रूल बताया हुआ है वो रूल काम आता है, एंड द लेंज लॉ। नॉर्थ पोलैरिटी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज करंट एंड साउथ पोलैरिटी मीन्स क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। अगर नॉर्थ पोलैरिटी क्लोजर हो रही है इस लूप के, आप इस लूप का एक ही साइड देखोगे क्योंकि दूसरा साइड अपने आप ही उसका ऑपोजिट है। तो एक साइड अगर नॉर्थ पोलैरिटी है और इस लूप का दो फेस होगा, दिस वन एंड दिस वन, सो नॉर्थ पोलैरिटी क्योंकि क्लोजर आ रही है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट होनी चाहिए, बिकॉज करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बिहाइंड इट्स ओरिजिनेशन। सो हियर नॉर्थ पोलैरिटी विल बी जनरेटेड। यहाँ पर साउथ आ रही थी तो इधर साउथ पोलैरिटी जनरेट होगी, क्लोजनेस को अपोज करेगी। तो वो केस तो अपने आप ही इसमें फिट आ जा रहा है। तो आप एक ही साइड के केस को सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर जब नॉर्थ पोलैरिटी क्लोज आएगी तो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी, यानी इस लूप में आपको सिंपली नॉर्थ पोलैरिटी बनानी है। और नॉर्थ पोलैरिटी बनाने का मतलब है कि करंट किस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट में यहाँ जो ए प्लेट होगी, क्योंकि करंट इधर से निकल रही है तो ऑब्वियसली ए प्लेट क्या है, पॉजिटिव है। और क्योंकि करंट बी प्लेट पे मूव कर रही है, जा रही है, इसलिए बी प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। सो द पोलैरिटी ऑफ ए प्लेट वुड बी पॉजिटिव एंड बी प्लेट वुड बी नेगेटिव। क्लियर? सो दैट इज़ द केस हियर। और भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कुछ ना समझ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और कमेंट बॉक्स में लिख करके दो मुझे क्वेश्चन, या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी या उसको मेथड आपको बताऊंगी ताकि आप उसको खुद से भी सॉल्व कर सको। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना, न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करना सीखो। आपको अपने, मैं जितना, या कोई भी टीचर, कोई भी आपका मेंटोर हो, जितना आपको खुद से बताता जाएगा आपको उतना नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसे सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम पे सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते होगे। टुमारो आई विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, which is eddy current. Eddy current is somewhat theoretical topic. Afterward, motional EMF and self-inductance, mutual inductance, transformer, many more topics are there. I told it that all the topics are very, very interesting and you will get interest in it. So, thank you for today.